بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروپ کے ممبران، معزز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راجہ زاہد نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم سب اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ کل پاکستان کی رویت ہلال کمیٹی نے ایک اعلان کیا۔ وہ اعلان دنیا کے ماہرین فلکیات کے لیے ایک تعجب والا اعلان تھا جس نے ان کو حیرت میں ڈال دیا، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کہیں ہماری تحقیق جو ہم نے سال ہا سال محنت کر کے کی ہے، کہیں ہم نے کوئی ٹھوکر تو نہیں کھائی اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنی تحقیق میں، یا کہیں پاکستان کی مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے کوئی ٹھوکر تو نہیں کھائی۔ یہ اسی طرح کی بات بنی جیسے ایک سیاسی بیان کے اوپر ہمارے محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ اس بیان نے آئنسٹائن کی روح کو بھی لرزا دیا ہے، آئنسٹائن بھی لرز اٹھا ہے اس سیاسی بیان پر۔ آج میں کہتا ہوں کہ کل مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے بیان نے عالم اسلام کے اور مغربی دنیا کے ماہرین فلکیات کو لرزا دیا ہے، اور جو ہمارے مسلمان ماہرین فلکیات تھے جو دنیا سے چلے گئے، وہ اس بیان پر اپنی قبروں میں بھی لرز اٹھے ہوں گے کہ یہ کس طرح کا اعلان آیا رات کے 11:45 کا۔ دعویٰ کیا ہے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا؟ معزز علماء کرام، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ پاکستان میں ہلال دیکھا گیا ہے 12 مئی کو، یہ دعویٰ ہے۔ اب میں اس دعوے کو رد کرنے کے لیے چند دلائل پیش کرتا ہوں۔ تفصیل اس وقت کے لیے میں ریزرو رکھتا ہوں جب تک پاکستان کی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا کوئی بھی ممبر میرے چیلنج کا جواب دے جو میں نے آج صبح برطانیہ میں نماز عید الفطر کے بعد میں نے وائرل کیا۔ میں انتظار کروں گا اور تفصیل اس وقت کے لیے ریزرو کرتا ہوں، مگر اس گروپ میں چند دلائل پیش کرتا ہوں اس دعوے کو رد کرنے کے لیے۔ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ کیا گیا کہ پسنی میں، میرپور خاص میں اور بلوچستان میں، قلعہ سیف اللہ میں ہلال نظر آیا ہے۔ میں ان تمام مقامات کا جائزہ لے کر بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ان مقامات پر ہلال نظر آ سکتا تھا یا نہیں نظر آ سکتا تھا، کیا رویت تھی یا عدم رویت تھی۔ دوسری بات جو دعوے میں بیان نہیں کی گئی، آپ بھی جانتے ہیں اس بات کی کوئی وضاحت نہیں آئی جہاں تک ہم نے میڈیا پہ اور ریٹن رپورٹس کا جائزہ لیا کہ کیا جن گواہوں کی گواہی پر عمل کر کے رمضان شریف کو اینڈ کیا اور شوال کا آغاز کرنے کا اعلان کیا، کیا ان گواہوں نے ہلال ننگی آنکھ سے دیکھا تھا یا کسی ٹیلیسکوپ سے دیکھا تھا؟ اس کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ معزز علماء کرام، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں دونوں صورتوں کا جائزہ لے کر اس اپنی گفتگو میں اس بات کو کھول کھول کے بیان کروں گا کہ کیا ٹیلیسکوپ سے نظر آ سکتا تھا یا ننگی آنکھ سے نظر آ سکتا تھا۔ دونوں صورتوں کے اوپر اپنے دلائل پیش کرتا ہوں۔ آئیے ہم آگوش ہو کر چند میری گزارشات سن لیں۔ کراچی کے اندر 12 مئی کو چاند کا ارتفاع
altitude of the moon फकत 7 डिग्री थी। एज ऑफ द मून 19 घंटे और 7 मिनट थी। बहुत आने शम्स माताब और आफताब की दूरी फकत 9 डिग्री थी। फर्क गुरूबैन 36 मिनट का था और जो क्लासिफिकेशन उसको दी गई वो कैटेगरी ई का है कि इस नौयत का हिलाल कभी भी नजर नहीं आ सकता, टेलीस्कोप के साथ भी नजर नहीं आ सकता, वो विजिबल नहीं है। इस नौयत का हिलाल अभी दर्जाए हिलाल में दाखिल हुआ है। 7 डिग्री, 9 डिग्री बहुत आने शम्स और 7 डिग्री इर्तफा एल्टीट्यूड, अभी ये स्टेजेस ऑफ क्रेसेंट में दाखिल हुआ है। पैदाइश के मराहिल से निकलकर अभी ये हिलाल के दर्जे में दाखिल हुआ है। नजर आने का कोई इम्कान नहीं था, ना नंगी आंख से न किसी टेलीस्कोप से। और ग्रुप के मेंबरान और मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम ये बात ज़हन नशीन कर लें, इस नौयत का हिलाल इन मुहर्रिकात के साथ पाकिस्तान की गुज़श्ता 200 साल का डेटा उठा लें। आप अपने एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनसे रजू करें, ये मुहर्रिकात उनके सामने पेश करें और पूछें कि इस नौयत का हिलाल कभी नजर आया पाकिस्तान में। आपको जवाब नफी में आएगा कि एब्सोल्युटली कोई चांस नहीं है कि इस तरह का हिलाल नजर आ सके या साबिका कहीं नजर आया है। कैटेगरी ई यानी विजिबल, टेलीस्कोप के जरिए भी विजिबिलिटी का कोई इम्कान नहीं। दूसरी बड़ी बात जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं वो ये, जदीद कायदों के मुताबिक, जदीद असूलों के मुताबिक हिलाल उस वक्त नजर आता है जब उसका इर्तकाज़े नूर, क्रेसेंट इल्यूमिनेशन, याद रहे चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। चांद सूरज की शुआओं से रोशनी अखज करता है और जूं जूं माताब और आफताब में दूरी इख्तियार होती है, सेपरेशन ऑफ द सन एंड द मून, वो शुआओं से जो सन की रेज की वजह से मिलती हैं मून को, उससे वो हिलाल विजिबल यानी नजर आने के काबिल होता है। इसको कहते हैं इर्तकाज़े नूर, क्रेसेंट इल्यूमिनेशन। जब तक 1% से जायद उसका हिस्सा रोशन ना हो, हिलाल नजर आने के दर्जे में दाखिल नहीं होता। ग्रुप के मेंबरान और मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम सुन लें, कल 12 मई को चांद की जो क्रेसेंट इल्यूमिनेशन थी वो फकत 0.57 थी, 1% से कम थी, बहुत ज्यादा कम थी, नजर आने का कोई इम्कान नहीं था। ये कराची का मैंने आपको डेटा दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस नौयत का हिलाल कराची से कोई खबर आ जाए। जो खबर आएगी वो झूठी होगी, मुगालता लगा है किसी को, उसने कुछ और देखा है, हिलाल नहीं देखा। और ये जो क्रेसेंट इल्यूमिनेशन की मैंने बात की है, ये 635 मुशाहदात को देखने के बाद माहिरीन फल्कियात बिलखसूस उर्दन, जॉर्डन के, वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जब तक क्रेसेंट इल्यूमिनेशन, इर्तकाज़े नूर 1% से जायद न हो, वो नजर आने का इम्कान उसका होता ही नहीं है और वो नजर नहीं आ सकता। आइए ग्रुप के मेंबरान, अब हम बात करते हैं मीरपुर खास की। मीरपुर खास की दावे में जो बयान दिया गया, मीरपुर खास में
11 मई को तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, इसलिए कि वो चांद की जो पैदाइश है वो रात के 7 बजे हुई। 12 मई को जिस दिन ऐलान किया गया वो 6 डिग्री उसका इर्तिफा था, एल्टीट्यूड ऑफ द मून। अब भी वो मुश्किल के साथ मोहाक के दर्जों से निकलकर फ्रॉम द स्टेजेस ऑफ कंजंक्शन हिलाल के फेजेस के अंदर, उस स्टेज के अंदर दाखिल हुआ है 6 डिग्री पर, और 9 डिग्री इलांगेशन थी उसकी, बहुत आने शम्स। और लेग टाइम जिसको फर्क गरूबैन कहते हैं वो फकत 35 मिनट का था। और कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन ई दर्जे पर थी। टेलीस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता था, नंगी आंख तो बड़े दूर की बात है, टेलीस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता था। अब बोलिए ग्रुप के मेंबरान, कोई अगर दावा करे कि मैंने इस नौयत का हिलाल देखा है, उसको मुगालता लगा है, उसने हिलाल नहीं देखा। और मैं फिर कहता हूं कि इस नौयत का हिलाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया। ये मीरपुर खास जो दावा किया गया वो डेटा मैंने आपके सामने रख दिया कि मीरपुर खास में भी हिलाल देखे जाने का कोई इम्कान नहीं था। आइए अब मैं बात करता हूं बेलअमूम बलोचिस्तान की। बलोचिस्तान 6 डिग्री उसका इर्तिफा था 12 मई को, और इलांगेशन 9 डिग्री था, 36 मिनट फर्क गरूबैन था। सवाल उठाता हूं, क्या इस नौयत का हिलाल बलोचिस्तान में देखा जा सकता था? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कैटेगरी ई पर था। सुन लें, अगर उस रोज मतला साफ भी होता, जो नहीं था, अगर मतला साफ भी होता तब भी नजर नहीं आ सकता था, इसलिए कि उसका इर्तिफा 6 डिग्री का है, और 6 डिग्री का इर्तिफा जिस चांद का हो वो मुश्किल से दर्जाए हिलाल में दाखिल हुआ है, नजर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा बलोचिस्तान की गवाही भी मुगालते पर मबनी है, हकीकत से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। आइए अब किला सैफुल्ला की मैं बात करता हूं। आप उलमाए कराम पाकिस्तान के शहरों का, कस्बों का, गांवों का नाम बताते जाएं। मैं बरतानिया में बैठकर आपका खादिम आपको एक एक शहर का, एक एक इलाके का एस्ट्रोनॉमिकल डेटा देने के लिए तैयार हूं, और साबित करना चाहता हूं कि अगर कोई दावा करे तो उसको मुगालता लग सकता है। ये एस्ट्रोनॉमिकल डेटा बताएगा कि क्या उस रोज हिलाल नजर आ सकता है या नहीं आ सकता। अगर यही डेटा बताता कि उस रोज हिलाल कैटेगरी बी पे था, या कैटेगरी सी पे था, या कैटेगरी ए पे था, तो हम उन गवाहों की गवाही को सुनने के लिए भी तैयार थे, उस पर गौर व फिक्र करने के लिए भी तैयार थे। ये कोई पैमाना नहीं कि लूली और लंगड़ी गवाही को बुनियाद बनाकर हम अपनी इबादत के फैसले करें। ये कौन सा मयार है और किसने ये मयार कायम किया है? किला सैफुल्ला 6 डिग्री एल्टीट्यूड है 12 मई को, 19 घंटे और 15 मिनट का हिला चांद है। मुश्किल के साथ अभी दर्जाए हिलाल में दाखिल हुआ है। इलांगेशन 9 डिग्री है, फर्क गरूबैन 36 मिनट है, और क्लासिफिकेशन ऑफ विजिबिलिटी कैटेगरी ई पे है, नॉट विजिबल विद अ टेलीस्कोप। मतला साफ हो तब भी नजर नहीं आ सकता, इसलिए कि उफक से बहुत नीचे है। नजर क्या आएगा? जिन लोगों ने
जिन गवाहों ने गवाही दी है उनको मैं यकीन से कहता हूं, मुगालता तो लग सकता है, हिलाल नजर नहीं आ सकता। और अगर कोई ये इस वहम में है, इस गुमान में है कि उन्होंने देखा है, तो एक बराए मेहरबानी एक काम करें, एक गवाह को जरा जूम पे ले आए, जरा टीम पे ले आए, जरा यूट्यूब पे ले आए, 2 मिनट मुझे दे दें, 2 सवाल करूंगा। अगर वो सवाल दुरुस्त हुए तो मैं बरमला कहूंगा कि मेरी तहकीक जो थी वो दुरुस्त नहीं थी, शायद इन्होंने हिलाल देखा हो। लेकिन ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे गवाह हमने बहुत सारे पहले भी देखे हैं जिनको इस उफक पे बहुत और कुछ नजर आता है और वो मुगालता करते हैं कि हमने हिलाल देखा है। इस पर तफसील के साथ जो है गुफ्तगू की जा सकती है कि मुगालता रोयत हिलाल में कैसे लगता है, और देखने वाले ऑब्जर्वर को एस्ट्रोनॉमिकली भी और एक्चुअल मुशाहदात में उसको क्या कुछ नजर आ सकता है कि वो समझता है कि मैंने हिलाल देखा है, लेकिन वो हिलाल होता नहीं है। और किला सैफुल्ला में सवाल ही पैदा नहीं होता था कि 12 मई को हिलाल जो है वो नजर आ सके। ग्रुप के मेंबरान, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मैंने आपकी खिदमत में तमाम दलाइल जो हैं वो अभी पेश किए, जिन जिन मुकामात की निशानदेही की गई थी। इजाफतन एक और बात जो है गर्दिश कर रही है पेशावर की। पेशावर का जियो पोजीशन जो है ज्योग्राफी के एतबार से वो भी बड़ी अहम है, लिहाजा जरूरी है कि ज्योग्राफी को मद्देनजर रखते हुए पेशावर की भी जाते जाते बात कर दूं, ताकि कोई पेशावर से सुपरमैन पैदा ना हो जाए जिसकी इतनी विजन हो कि वो इनविजिबल मून को भी देखने का दावा करे। उस दावे से पहले मैं जरा दलाइल देना चाहता हूं। 12 मई को पेशावर के अंदर फकत 6 डिग्री एल्टीट्यूड है, फकत 6 डिग्री। एलोंगेशन 8 डिग्री है। मुश्किल के साथ दर्जाए हिलाल में दाखिल हुआ है। नजर आने का कोई इम्कान नहीं है, कोई इम्कान नहीं। और पेशावर में 12 मई इर्तकाज़े नूर क्रेसेंट इल्यूमिनेशन फकत 0.57% है, 1% से कम है। नजर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, ये तमाम डेटा, ये तमाम हकाइक जो मैंने आपकी खिदमत में एक नमूने के तौर पर पेश किए, असल तफसील तो मैं उस दिन खोल खोल के बयान करूंगा कि अगर मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का कोई भी मेंबर, चेयरमैन से लेकर नीचे तक, ये ईमानी और इखलाकी जुर्रत करके मेरे उस चैलेंज को जो आज मैंने वायरल किया है वो सामने आए, चाहे वर्चुअली आ जाए चाहे फेस टू फेस आ जाए, फिर मैं आप उलमाए कराम के सामने वो तफसील पेश करूंगा कि शायद पाकिस्तान की रोयत हिलाल कमेटी के मेंबरों ने भी इस तरह की तहकीक जो है वो ना सुनी होगी। अब ये जो डेटा मैंने पेश किया, एक और चैलेंज करता हूं, ये डेटा जमा कर लें, जरा मेहनत करें। पाकिस्तान की एस्ट्रोनॉमिकल लाइब्रेरीज जो हैं, किताबें जो हैं, रिकॉर्ड्स जो हैं, डेटा है, उसके अंदर आप जरा अपने आप को यूं समझ लें, महव कर दें, ताकीक करें कि इस नौयत का डेटा जो 12 मई के लिए हमने पेश किया, पाकिस्तान की गुज़श्ता 200 साल की तारीख में या हिंदो पाक की तारीख में या इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में क्या इस तरह की हिलाल या चांद कभी नजर आया या नहीं आया। बांग्लादेश से शुरू करें, हिंदुस्तान को डालें, ये जितना रीजन है, मैं रीजन की बात करता हूं, मैं फकत मीरपुर खास की बात नहीं करूंगा, मैं पसनी की बात नहीं कर रहा, मैं ओपन रखता हूं। इस नौयत का डेटा आप तारीख में चले जाएं, हिस्टोरिकल आर्काइव्स में चले जाएं, चेक करें, आपको जवाब नफी में आएगा
کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس نوعیت کا ہلال جو ہے کیٹیگری ای کلاسیفیکیشن کا کوئی دعویٰ کرے کہ ننگی آنکھ سے نظر آیا. میں وہ آنکھیں دیکھنا چاہتا ہوں جن کے پاس اتنا ویژن ہے کہ وہ انویزیبل مون کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ہو نہیں سکتا. میں امید کروں گا کہ یہ میرا ڈیٹا جو ہے آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا معزز علماء کرام، اور اس ڈیٹے کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان میں عید الفطر کا پہلا دن وہ 14 مئی کو جمعے کے روز تھا، 13 مئی کو نہیں تھا جو فیصلہ کیا گیا. یہ فیصلہ درست نہیں تھا، نہیں تھا، نہیں تھا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.